welcome to the third chapter of History, Maharashtra State Board. Third chapter is Effects of British Rule. Guys, in the last chapter we have studied about the geographical discoveries, and in this we have already studied like how the European sailors went to the expedition to discover the sea routes to India. Fine, and in it we have seen the few names of European sailors like Bartholomew Dias, Christopher Columbus, as well as the Vasco da Gama, right? So we have seen like the Bartholomew Dias were tried well to reach India, but unfortunately he reached the coast of Africa. Fine, that is known as the Cape of Good Hope. And the second, Christopher Columbus, in it we have seen like he started from the west side and he reached the coast of America. Fine. And the last, which is the name of Vasco da Gama, is a Portuguese sailor, and he started from the to search the route of to reach the India. So उन्होंने Cape of Good को पास होते हुए he reached the Indian coast of Calicut, है ना, जो कि केरला में आता है. सो फाइनली वास्को ड गामा ने अपनी जो रास्ता है वो सर्च किया, एंड आफ्टर सर्च दिस रूट, ये रूट को सर्च करने के बाद वी हैव सीन हाउ द डच, पोर्टुगेज और द ब्रिटिशर्स वर एंटर इन इंडिया, है ना. ये रास्ते को सर्च करने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग थे यूरोपियन के जैसे मैंने बताया आपको ब्रिटिश, फ्रेंच और द डच, ये लोगों ने किस तरीके से हमारे कंट्री में एंटर हो गए. फाइन. So today we will talk about the how the effects of British rule over the India. So we having the first subtopic is of establishment of British East India Company. So ये जो सब टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर ही तो हमने देखा था कि वो जोग्राफिकल डिस्कवरीज है. सो किस तरीके से लोगों ने अपना रास्ता सर्च किया था. ठीक है, बाय द पीपल्स वे नीड टू सर्च द न्यू रूट, क्यों जरूरी था ये रास्ता सर्च करने का. तो वी सीन लाइक तुर्क्स वेर कैप्चर द इस्तांबुल, वो जो इस्तांबुल प्लेस था उसको तुर्क लोगों ने कैप्चर कर लिया. बिकॉज ऑफ कैप्चरिंग वो जो आने जाने का रास्ता तो क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक कर लिया था तुर्क लोगों ने. So because of this they required to search the new route, है ना. And also they knows well like कि in India they having the spices things, and also India is of wealth country. उनको इस चीज़ें पता था कि यहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा मिलता है, इंडिया में वेल्थ ज़्यादा है. So ये चीज़ों से भी उनको रास्ता सर्च करना था. Fine. So here we having the few points related to the establishment of East India Company. See guys, ये before starting this subtopic हमें last chapter में ही हमने study किया था कि the purpose of the British is to उनका main purpose क्या था इंडिया में आने का, just for the trading center, है ना. He enter in India for the trading center. लेकिन वो आने के बाद वो जो है क्या करते हैं, अलग अलग टेरिटरीज पे कैप्चर करते हैं और फिर वहाँ पे अपना रूल करते हैं. ये कौन, ब्रिटिशर्स ने ऐसा स्टार्ट किया था. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सब टॉपिक व्हिच इज गिवन ऑन द बोर्ड. सो लुक हियर गाइस, फर्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो here I already given you the few introduction of the East India Company, like we have already seen related to the like how the people were done the geographical discoveries to select the alternate route कहाँ पे पहुँचने के लिए, इंडिया में पहुँचने के लिए. So the European including Portuguese, Dutch, French and British entered the race for capturing the Indian market. So यह भी आपसे लाइक कि जब geographical जब डिस्कवरी में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने रास्ता को सर्च किया, तो फाइनली जो वास्को ड गामा थे उन्होंने केप ऑफ गुड होप को होते हुए उन्होंने क्या किया, कैलिकट तक पहुंच गए. फाइन. उसके बाद जो लोग थे ये पोर्टुगीज, ब्रिटिश या डच या फ्रेंच लोग थे, वो आना जाना स्टार्ट हो गए. सो यहाँ पे ये आने के बाद इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि अपनी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश किया. अपनी मार्केट इट मीन्स इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश किया. Okay, so that's why it's given here like the race of capturing the Indian market. And when the British came to India for the trade purpose, so the Portuguese, see जब ये आते हैं ना guys, try to understand the concept like कि जब ये ब्रिटिश यहाँ पे एंटर होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि किस सोच से यहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग के लिए आते हैं.
द ब्रिटिशर्स वे एंटर इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं ना, तो इनके पहले पोर्टुगीज ऑलरेडी सेटल रहते हैं इंडिया में। तो जब ब्रिटिश एंटर होती है तो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोर्टुगीज एंड द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो आफ्टर फ्यू टाइम, आफ्टर सम डेज और फ्यू आवर्स, what they have done, they made the relationship between each other। ये जब ब्रिटिश यहाँ पर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि पोर्टुगीज जो पहले से सेटल है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बट कुछ समय के बाद ये दोनों के बीच में रिलेशन बन जाती है। बट ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या है, ही वांट टू मेक द डोमिनेशन ओवर द ऑल ओवर द इंडिया। सो इनको क्या करना था, ब्रिटिश को अपोज करना था। सो ही स्टार्टेड मेकिंग द अपोज फ्रॉम द डच, फ्रेंच एज वेल एज द लोकल रूलर्स, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पे देखा कि ये कैप्चर करने के लिए इंडियन मार्केट के लिए ये लोग ने एंटर हुआ था। So once the Britishers were entered, so what he saw like the Britishers, Portuguese were already settled in India। So अब पोर्टुगीज और ब्रिटिश के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कुछ समय के बाद ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिलेशन बन जाती है, गुड रिलेशंस, फाइन। अब ब्रिटिश की सोच क्या है, ब्रिटिश ने क्या सोचा था यहाँ पे कि लाइक टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर द इंडिया। अब उसके लिए द ब्रिटिश हैड टू फेस द अपोजिशन। किसके साथ अपोजिशन फेस किया, सो अपोजिशन फ्रॉम द फ्रेंच, डच एज वेल एज द लोकल रूलर्स, ठीक है। सो ये किसके अंदर आया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आया। सो यहाँ पे ऑप्शन कि किस तरीके से ये ब्रिटिश यहाँ पे एंटर होती है, कौन से पर्पज से, जस्ट फॉर द ट्रेडिंग। वो क्या सोच लेकर यहाँ पे आती है, सिर्फ ट्रेडिंग करने आती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अपने रूल भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ योर ब्रिटिश एंड मराठास। सी ब्रिटिश का मतलब आपको पता है अंग्रेज, एंड मराठा मीन्स मराठी पीपल, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द ब्रिटिश एंड द मराठा। सी गाइस, ये इनका पर्पस था ट्रेडिंग के लिए, लेकिन ये इनका मेन क्या था, लाइक कि अपने जो वेस्टर्न पार्ट में जो मुंबई था, ये ब्रिटिश के लिए एक मेन सेंटर था। सो इनकी सोच क्या थी कि हम आसपास मुंबई के आसपास के टेरिटरी में अपना प्लेस बनाएंगे, जगह बनाएंगे, राइट, जगह बनाएंगे। बट वो एक्चुअली यहाँ पे पेशवा माधवराव रहते हैं, तो उनकी जो होल्ड रहती है ना उस प्लेस पे, अपने मुंबई पे, वो स्ट्रॉन्ग रहती है, फाइन। तो ये क्या करते हैं, जो बनाना था उनको, मतलब आसपास के एरिया पे जो टेरिटरी बनाना था, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो हियर वी हैव द पॉइंट्स लाइक मुंबई वाज द मेन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द लाइन लाइक कि जो मुंबई है इनका मेन सेंटर था। सो दे वर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय द टेरिटरीज, बट द मराठास हैव द स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट, ठीक है। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू लाइक कि मराठा हैविंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इन इट, they were not got the success to acquire the territories nearby the Mumbai, fine. So after that, after the death of Peshwa Madhav, see here, ये है पेशवा माधव राव, फाइन। सी जब तक इनका होल्ड रहता है, मतलब जब तक ये रहते हैं पेशवा, सो ये ट्राइड वेल लाइक कि ब्रिटिश को एंटर नहीं होना है। इवन दी बहुत सारे ऐसे मराठा भी रहते हैं जो इनके सपोर्टर में रहते हैं कि ब्रिटिश को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना है। बट वंस ही गॉट द डेथ, जब इनकी डेथ होती है पेशवा माधव राव की, सो इनके अंकल कौन, रघुनाथ राव, ये कौन रहते हैं, पेशवा माधवराव के अंकल रहते हैं। कौन रहते हैं, पेशवा माधवराव के अंकल रहते हैं, ठीक है। पेशवा माधवराव के अंकल कौन, रघुनाथ राव। सो ये आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, रघुनाथ राव अप्रोच फॉर द हेल्प ऑफ ब्रिटिश फॉर द ग्रीड ऑफ हिज पेशवाशिप। सी गाइस, ये आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव ही हैज टेकन द हेल्प। ये मदद मांगने के लिए किसके पास जाते हैं, ब्रिटिश के पास जाते हैं। कौन, रघुनाथ। सी ब्रिटिश को क्या चाहिए था, सी गाइस, ब्रिटिश को क्या चाहिए था, उनको दे वांट द चांस टू एंटर इन मुंबई। अब ये चांस में जब तक पेशवा माधवराव थे तो उनको चांस नहीं मिल पाया, लेकिन जब इनकी डेथ होती है, सो व्हाट द रघुनाथ राव हैड डन, ही हैड टेकन द हेल्प ऑफ
किसका? ब्रिटिश का। अब जब ब्रिटिश का हेल्प लेते हैं, सो ब्रिटिश वर एग्रीड टू गिव दैट बिकॉज दे रिक्वायर द चांस टू एंटर द मुंबई, है ना। सो वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसको? रघुनाथ राव को। इनको अपने पेशा पे जो था वो लाइक यकीन नहीं था रघुनाथ राव को, सॉरी रघुनाथ राव को। सो दैट्स व्हाई ही हैज टेकन द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। सो ब्रिटिश में एग्रीड टू डू द हेल्प द मराठास एंड ऑल, राइट। उन्होंने एग्रीड किया कि हाँ करेंगे हम आपकी हेल्प, ठीक है। सो वो मौका उठाकर जो ब्रिटिश होती है वो कहाँ पे एंटर हो जाती है? मुंबई में एंटर हो जाती है, फाइन। सो सी अब जब मुंबई में एंटर होती है, सो सी गाइस, ये अपार्ट फ्रॉम दिस फ्यू मेंबर्स, कुछ लोगों के अलावा कुछ और भी ऐसे सरदार थे, ठीक है। तो सी जब ये हेल्प लेते हैं और ये ब्रिटिश जब अंदर एंटर हो जाती है, सो सारे मराठा को ये एग्रीड नहीं रहता है, मतलब सारे मराठा वे डोंट लाइक उनको अच्छा नहीं था कि ये ब्रिटिश किस तरीके से हमारे यहाँ पे एंटर हो गई। सो सरकारों को ये पसंद नहीं था, ठीक है। कुछ मराठा इनके सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ मराठा ऐसे थे, कुछ सरदार ऐसे थे जिनको दे डोंट लाइक कि व्हाई द ब्रिटिशर्स वेर एंटरिंग इन मुंबई। सो ये इन्होंने क्या किया? दे वे स्टार्टेड फाइट वॉर बिटवीन द मराठा एंड द ब्रिटिश। सो ड्यूरिंग द 1774 to 1818 3 wars were fought between the Marathas and the British. See, ये 1774 to till 1818 यहाँ तक 3 वॉर होता है। किसके बीच में? सो बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश। अब ये वॉर क्यों हुआ? मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे अब इन्होंने तो हेल्प ले लिया, कुछ ऐसे भी सरदार थे जिनको ये पसंद नहीं था कि ब्रिटिश किस तरीके से हमारे यहाँ पे एंटर हो गई, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? दोनों के बीच में वॉर होता है। किसके बीच में? मराठा और ब्रिटिश के बीच में वॉर होता है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ मराठा एंड द ब्रिटिश, है ना, ये दोनों की वॉर में पहला जो वॉर होता है उसमें ऑल द मराठास मेंबर वेर ट्राइड यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश वॉर, है ना, एंड हैंस दे प्रूव टू बी सुपीरियर, एंड इन दिस वे द फर्स्ट मराठा एंग्लो वॉर और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज केम टू बी एंड। सो हियर वी हैव द पावर पॉइंट आफ्टर दिस। सी आप ये यहाँ पे वॉर स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट जब होता है, तो इसमें मराठा के जो मेंबर है वो एकदम लाइक एक्साइट होकर और अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी जोश लगाकर वो ब्रिटिश के साथ क्या करते हैं? फाइट करते हैं। और फाइट में वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, लाइक ये मराठास में कौन थे? सुपीरियर, वो उस समय सुपीरियर बन जाते हैं फाइट में। और इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सेल्बाई द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू बी एंड। एंग्लो इट मीन्स वो ब्रिटिश, और मराठा का मतलब मराठों के साथ हुआ था, ठीक है। सो ये ब्रिटिश मराठा वॉर जो था वो 1782 में खत्म हुआ था, ठीक है, वहाँ पे एंड हुआ। सो हैज ए सेम इस तरीके से हमारा जो है वो फर्स्ट वॉर से 3 वॉर हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट वॉर का आपको बताया है कि फर्स्ट वॉर क्यों हुआ, why the first war में happen, क्यों हुआ फर्स्ट वॉर? सो रीजन कि सारे जो मराठा के मेंबर थे, से यहाँ पे पेशवा आपका डेथ ऑफ पेशवा माधवराव ये आते हैं एंड ही टुक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, और इसकी वजह से कुछ ऐसे मराठा थे जिसको दे डोंट लाइक कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे किस तरीके से एंटर हो रही है। सो दे गॉट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मराठास, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे स्टार्टेड द वॉर। अब वो वॉर का फर्स्ट नाम क्या है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो ब्रिटिश है, मराठा मतलब मराठा के साथ हुआ। तो ये कब हुआ था? 1782 को, फाइन, एंड इट केम to be end. Now the next subtopic is of your subsidiary alliance. Next is of your subsidiary alliance. See guys, this one is a subsidiary alliance. You know what is subsidiary alliance? एक treaty sign होता है guys. Subsidiary alliance एक treaty sign होता है, और actually ये sign क्यों करता है? Let me know like कि ये किस तरीके से होता है. So let me tell you. ये actually धीरे धीरे क्या होता है, इंडिया के कुछ अलग अलग प्लेस पे लोग दे स्टार्टेड फियरिंग लाइक कि ब्रिटिश जो है वो हमारे पे कैप्चर कर लेगी और फिर हमें अभी अपने लाइक रूल में अपने अंडर में कर लेगी और हमें कुछ परेशान करेगी, हरेस करेगी। सो उनको एक फियर सा हो गया, एक डर सा हो गया।
सो डर सा हो गया, इसके लिए इन्होंने क्या साइन किया, ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया। अब इसके अंदर से ये सब्सिडरी अलायंस साइन तो किया, साइन करने के साथ साथ ब्रिटिशर्स का कुछ जो थे शर्तें उन्होंने स्टार्ट किया, लाइक कि सी ये जो साइन किया इसमें इन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या हेल्प देने की शर्त रखी, लाइक कि उन्होंने बोला कि हम आपको मिलिट्री हेल्प देंगे। सी ये ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इंडियन को मिलिट्री हेल्प देंगे। सो ये हेल्प तो देंगे, दैट इज द गुड थिंग, लेकिन ये हेल्प देने से पहले शर्त क्या थी इनकी कि जो भी पे करना है, लाइक एग्जांपल वी बी वर्किंग आइदर इन इंडस्ट्री और अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, लाइक किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं या इंडस्ट्री के अलावा कहीं पे भी काम करते हैं, सो हम क्या करते हैं वो वर्किंग आवर्स का द पीपल्स ने पेइंग द सैलरी ऑफ द मनी, है ना। सो ऐसे ही जो मिलिट्री आएंगे यहाँ पे, सो उनको भी कुछ सैलरी वगैरह देना है। सो ब्रिटिश का शर्त क्या था कि इनको जो भी कैश देना होगा वो कौन देगा, इंडियंस के बंदे देंगे, सेकेंड। और क्या शर्त था इनका, आइदर कैश देना है या फिर बदले में कुछ ट्रेडी होगा, कुछ जमीन होगा, वो आप उनको दे सकते हैं। ये किसकी शर्त थी, ब्रिटिश का शर्त था। किससे इन्होंने शर्तें रखी, इंडियन से रखा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सब टॉपिक। सो in 1798 Lord Wellesley arrived in India as Governor General। से guys, एक गवर्नर जनरल जो है ये ब्रिटिश के बंदे रहते हैं, एंड लॉर्ड वेल्लेस्ली एंड ही अराइव्ड इन इंडिया। से इनका इंटेंशन क्या रहता है कि पूरी इंडिया में ब्रिटिश का डोमिनेशन चलना चाहिए, इट मीन्स रूल्ड। किसकी इंटेंशन है ये, लॉर्ड वेल्लेस्ली का है। इनकी सोच ये थी, ये सोच लेकर आए थे कि मैं इंडिया में जाकर पूरे ऑल ओवर पे इंडिया पे मैं क्या करूँगा, ब्रिटिश का ही रूल स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। सो नेम ऑफ पर्सन इज लॉर्ड वेल्लेस्ली, है ना। इंडिया हैज ए गवर्नर जनरल। ये किस रूप में आए थे यहाँ पर, गवर्नर के रूप में आए थे, फाइन। एंड हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश डोमिनेंसी, ऑलरेडी गिवन हियर। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटिश डोमिनेंस, इट मीन्स पावर ऑल ओवर द इंडिया। ये इनकी ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये ही सोच लेकर आए थे यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, जाऊँगा वहाँ पे और वहाँ पे जाने का सबसे रिलेशन करूँगा और फिर धीरे धीरे क्या करूँगा, सो इंडिया पे एक डोमिनियन पावर एस्टैब्लिश करूँगा। किसका, सो ब्रिटिशर्स का, फाइन। सो वो इंटेंशन से ये इंडिया में आए थे। Now for this he signed the subsidiary alliance. See, now for this he signed the subsidiary alliance with many Indian rulers. See, पहले ऐसा होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। इवन वी हैव सीन द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरीके से डिस्कवर हुआ था, कैसे कैसे रास्ता सर्च हुआ था, फिर किस तरीके से पोर्टुगीज, डच, फ्रांस और ब्रिटिश एंटर हुए थे और फिर कंपनी स्टार्ट किए थे लोगों ने। सो उस समय इंडियन लोगों ने क्या कर रहे थे, वो एक ट्रीटी साइन करते थे। सी उनको एक डर था, इंडियन को एक डर था कि हमें ब्रिटिश जो है लाइक पावरफुल है, हमें दबा देगी या हमें अरेस्ट करेगी, हमें परेशान करेगी। सो उसके लिए ये क्या करते थे, एक ट्रीटी साइन करते थे, ठीक है। सो फॉर दिस ही साइंड दैट सब्सिडरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वर assured of British military help। See, जब उन्होंने जब सब्सिडरी अलायंस साइन किया इन्होंने, सो इनको एक एश्योर किया गया, किसको, इंडियन को एश्योर किया गया कि हम आपको क्या देंगे, सो ब्रिटिश मिलिट्री मतलब हेल्प देंगे। किसका, ब्रिटिश मिलिट्री का हेल्प देंगे। सो ये मिलिट्री किसका है, अगर मैं ये बोलूँ ये मिलिट्री पर्सन है तो किसका है, ये ब्रिटिश का है, ठीक है। ये हेल्प किसको करने के लिए बात हो रही है, सो इंडियन को। किसको बात हो रही है, इंडियन को बात हो रही है। जब ये ट्रीटी साइन हुआ उसमें ये सारी चीज़ें एश्योर्ड हुआ कि इंडियन रूलर्स वेर एश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। इनको एश्योर्ड किया गया, किसको, इंडियंस को, कि आपको ब्रिटिश का मिलिट्री हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सब्सिडरी अलायंस व्हाट आई टोल्ड यू कि ये दिए तो ठीक, लेकिन ये देने के पहले इन पर कुछ शर्तें हुआ, ठीक है। सो यू नो वो शर्तें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ ये शर्तें वाला कैश और जो चीज़ें हुआ था। सो दे विल लेट टर्म्स ले ऑन दैट। सो इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी इन द कोर्ट एंड हैव टू पे आइदर कैश or the part of their territory to the company for its maintenance. So the ruler will not have any alliance with any other power or declare war against
any of the power without the intervention of British. So the ruler would accept the British residents in their states. So the Indian states rulers accepted the systems and lost their freedom. So as the same we see is because of this accepting the assurance which is given by the British. जो ब्रिटिश ने यहाँ पे एश्योर किया था इंडियन को कि हम इस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, लेकिन इसमें भी दे हैव गिवन फ्यू टर्म्स दैट इज द इंडियंस हैव टू पे either cash or else have to give the some territories, right? So ये जब ये एग्रीड करते हैं इंडियंस कि हाँ मैं कैश दूंगा या फिर अपना कुछ टेरिटरी कुछ जगह जो है इनको दे दूंगा, जब ये एग्रीड करते हैं सो धीरे धीरे क्या होती है जी ब्रिटिश का तो वो यही चाहते थे कि मैं क्या करूँ धीरे धीरे जमीन को कैप्चर करूँ, लोगों को कैप्चर करूँ और फिर उस पर अपना रूल करूँ। ये किसका सोच था? ये ब्रिटिश का सोच था और ये इंडियंस क्या हो गए धीरे धीरे उसमें एग्रीड होते थे। इनको ये नहीं पता था कि हम धीरे धीरे फंस जाएंगे, लेकिन उनके अंदर एक डर भी था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें अरेस्ट करेंगे। फाइन। सो वो डर को लेकर इन्होंने क्या किया, इनका जो टर्म इन्होंने दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम पैसे देंगे या फिर अपने हिस्से की कुछ जमीन या जगह है वो देंगे। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया, चीज़ों को कैप्चर करना चालू कर दिया और फिर वो कैप्चर करते करते इनकी जो आज़ादी थी, मतलब इंडियंस की जो आज़ादी थी वो धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द फ्यू पॉइंट्स इन इट। सो सी हियर द नेक्स्ट पॉइंट, इन 1802 बाजीराव टू साइड। सी बाजीराव टू क्यों थे यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले बाजीराव थे, ठीक है। और बाजीराव की डेथ होने के बाद पहले कैसा होता था, जो लोग बहुत अच्छा काम करते थे, जिनका बहुत अच्छा नाम था, सो उनके नाम पे आगे वाले जो नाती होते हैं या उनके सन इन लॉ होते हैं, सो वो नाम उनको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे नाम दिया है। अब सेम बाजीराव रखेंगे तो सेम हो जाएगा, इसके लिए बाजीराव टू के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, सो इन 1802 बाजीराव टू साइन द सब्सिडारी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। मैंने बोला ना कि वो एक डर था और उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ट्रीटी को साइन कर दिया। सो सी यहाँ बाजीराव टू ने भी क्या किया, सब्सिडारी अलायंस साइन कर दिया, किसके साथ, विद द ब्रिटिश। एंड दिस अलायंस इज वेल नोन एज ए ट्रीटी ऑफ वसई। हमने वसई का नाम सुना है, वसई फाइन। सो उसको किस नाम से जाना जाता है, सो ट्रीटी ऑफ वसई के नाम से जाना जाता है। सी ऑलरेडी गिवन हियर द अलायंस, दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। सी अब इन्होंने तो ट्रीटी साइन कर लिया, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। अब यहाँ पे ये तो इनकी एग्रीड था, किसका, ये बाजीराव का एग्रीड था कि हाँ मैं साइन कर लेता हूँ, सो ब्रिटिश क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे, ये इनकी सोच थी वैसे। लेकिन ब्रिटिश को क्या चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता के लिए ये इनसे क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सबसे साइन करवा के फिर उस पर रूल करना चालू कर देते थे। सी वी आर डन दिस साइन ऑफ सब्सिडारी अलायंस, कर दिया इन्होंने साइन। आफ्टर दैट see but the treaty was not acceptable to some Maratha Sardars, so this led to the second Anglo-Maratha war. See at the earlier what I told you कि not the every Marathas member were accept, like सारे मराठा के मेंबर एक्सेप्ट नहीं किए कि जो सब्सिडारी अलायंस साइन हो रहा है वो सही है, ये सब एक्सेप्ट नहीं किए। कुछ ऐसे सरदार थे जिनको ये एक्सेप्टेबल था ही नहीं कि ये सब्सिडारी अलायंस साइन क्यों कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं किए, और नहीं एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पे ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, किसके बीच में होता है, सो बिटवीन ब्रिटिश एंड दी मराठा। किसके बीच में होता है, सो बिटवीन ब्रिटिश एंड दी मराठा के बीच में ये सेकेंड वॉर होता है। अब एंग्लो इट मीन्स यू नो वेल, एंग्लो का मतलब मैंने क्या बताया था, वही ब्रिटिश और मराठा के साथ वॉर होता है। ठीक है, अब जब ये वॉर होता है, सी वंस स्टार्टेड दिस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जब ये स्टार्ट होता है, सो दिस बिकेम द इनटॉलरेबल एंड बाजीराव टू वेट द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड ही वाज डिफीटेड इन दिस बैटल, एंड आफ्टर दैट इन 1818 द बाजीराव टू सरेंडर टू द ब्रिटिश। ठीक है, and in the meantime the capital of Mughals was under the control of Daulat Rao Shinde. By defeating the troop of Shinde, General Lake captured the Mughal emperor
and gained the victory over the Hindustan. So in this way we have seen the first Anglo-Maratha war and the second Anglo-Maratha war. इस तरीके से हमने दो मराठा वॉर देखा, एक फर्स्ट एंग्लो-मराठा वॉर जो कि हमने ब्रिटिश और मराठा के बीच में देखा था कि किस तरीके से पेशवा माधवराव के डेथ होने के बाद रघुनाथ राव क्या करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं और हेल्प लेने के बाद में कुछ मराठा को वो एक्सेप्ट नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, झगड़ा होता है, फर्स्ट एंग्लो वॉर वहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर 1782 फर्स्ट एंग्लो वॉर खत्म होता है एंड हियर वी हैव सीन कि 1802 को बाजीराव टू जो होते हैं वो ट्रीटी साइन करते हैं किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। सी मैंने बताया ये डर हो जाता है इसलिए क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। बट कुछ सरदार ऐसे होते हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं रहता है कि इन्होंने ट्रीटी को सिर्फ क्यों साइन किया। सो अगेन दे विल स्टार्टेड द फाइट बिटवीन दी मराठा एंड दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उस वॉर में जो बाजीराव देखते हैं उनके लिए वो सहने लायक नहीं होता है, ठीक है, कि वो देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ इनजस्टिस वाला काम कर रहे हैं। सो इट इज इनटॉलरेबल फॉर द बाजीराव टू एंड आफ्टर दैट द मराठास वे गॉट द डिफीटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स से वो हार जाते हैं और हारने के बाद बाजीराव को क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं किसके हवाले, ब्रिटिश के हवाले। और इस तरीके से ब्रिटिश जो है पूरे हिंदुस्तान पे अपना कंट्रोल करता है। सो स्टिल हियर वी विल कंप्लीटेड द सब्सिडारी अलायंस। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द छत्रपति प्रताप सिंह। इसकी अगले वीडियो में हम देखेंगे छत्रपति प्रताप सिंह कि किस तरीके से वो अपने टेरिटरी को हैंडल करते हैं। सी ब्रिटिश तो अब धीरे धीरे सब जगह पे फैली रही है, सो किस तरीके से प्रताप सिंह हैंडल करने की कोशिश करते हैं, विल सी लेटर, फाइन। सो टिल हियर गाइस, यू वांट डू वन थिंग, स्टडी वेल, वॉच द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन ऑन द बोर्ड, क्या दिया है ये बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए और अपने होमवर्क की नोटबुक में आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब्सिडारी अलायंस एज वेल एज द वॉर ऑफ मराठा एंड ब्रिटिश, इसके आप दो पॉइंट अपने नोटबुक में लिखेंगे, फाइन। सो इफ यू हैविंग अ डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी गाइस। थैंक यू सो मच।